So, good morning everyone. So, today we are going to start chapter 5, How to Get Success. So, about this lesson, let's start. Everyone wants to be successful man, but everyone cannot be successful. It needs hard work, patience, focus, determination. Only then one can get success in one's life. यानी कि इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया कि हर हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुल बने, एक सक्सेसफुल इंसान बने, पर सब तो सक्सेसफुल नहीं होते। पर उस क्योंकि सक्सेस पाने के लिए हमें हार्ड वर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए, फोकस चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और जो ये सब कर पाता है वो सक्सीड हो जाता है अपनी लाइफ में। सो इसमें स्टोरी दिखाई है। सो लेट्स स्टार्ट इट फर्दर। It was an English period. Mrs. Bose, the English teacher, entered the class. Children, she said, don't take out your books. Today I shall tell you a story. The children got exercises. Thank you, ma'am, they all said. Now listen to me, said Mrs. Bose. So, इसमें एक टीचर दिखाई है, यानी एक क्लासरूम का सीन दिखाया है जिसमें टीचर क्लास में एंटर होती है। टीचर कौन थी? मिसेस बोस। इंग्लिश का पीरियड था, तो बच्चों को वो बोलती हैं कि अपनी बुक्स मत निकालो, और आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हाँ थैंक यू मैम। तो मिसेस बोस कहती हैं, नाउ लिसन टू मी। Long ago, there was no schools or no colleges as we have now. Instead, there were gurukuls, many gurukuls. The boys were sent to gurukuls to study. They had to live in the ashram of the guru. In the ashram, the boys used to share all the work. The guru taught maths, grammar, and the holy books. Beside this, they were taught the art of horse riding and the use of bows and arrows. तो अब क्या बताया कि बहुत साल पहले ये स्कूल्स कॉलेजेस नहीं हुआ करते जैसे हमारे हैं, तो इसकी जगह क्या होते थे, बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे। अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे तो गुरुकुल वो बताएंगे कि स्कूल उस टाइम गुरुकुल जैसे स्कूल हमारे होते ना, उसी तरह उस टाइम गुरुकुल हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ पे जो लड़की लोग होते थे उन्हें भेजा जाता था पढ़ाई के लिए, और वहाँ पे वो गुरु के आश्रम में वहाँ रहते थे। तो उस आश्रम में जो सारे बॉयज़ थे उनको सारा अपने आप से काम करना होता था। सब एक दूसरे की मदद करते थे, और वहाँ पे जो गुरु थे वो मैथ्स, ग्रामर और पारंपरिक बुक जो होती है हमारी, उन्हें पढ़ाते थे। इसके अलावा वो और भी चीज़ें पढ़ाते थे, जैसे हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़ा कैसे चलाते हैं, और तीर कमान जो होती है वो कैसे चलाते हैं, वो सब। ठीक। पांडु was the king of Hastinapur, sent his 5 sons to the Gurukul of Guru Dronacharya. The 5 princes lived with the Guru in the ashrams. Okay, the Guru Dronacharya taught them to fight with spears, swords, clubs. He also taught them archery. तो पांडु एक राजा थे हस्तिनापुर के। उन्होंने अपने 5 लड़कों को, जो उनकी 5 लड़के थे, उनको गुरुकुल में भेजा। किसके? गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में। ठीक है, तो वहाँ पे उनके आश्रम में वो रहते थे। गुरु द्रोणाचार्य ने फाइट करना स्पेयर से, स्वॉर्ड से, क्लब से, आर्चरी सिखाते थे कैसे चलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन डे गुरु द्रोणाचार्य took the princess to another part of the forest. He wanted to give a lesson of archery. Dronacharya showed the princess a clay bird that he had put upon a tree. Then he pointed to the bird and said, I want you to peer the eye of the bird. Dronacharya asked Yudhishthir, tell me, what did you see? I see the trees and the sky, said Yudhishthir. Then Dronacharya asked Bhim, what do you see? I see the stream also, said Bhim. I see the sun and the clouds, said the youngest prince. What did you see, Arjun? Asked the Guru. You have asked me to pierce the bird's eye. Right now I see nothing but the eye of the bird. The Guru smiled and said, Arjun, one day you will be the greatest archer
of Hasnapur because you put your heart in the work that you want to do. Dronacharya's word comes true when Arjun grew up. Nobody could match him in archery. Mrs. Bose said, "Children, this story gives us a your message. Whenever you do something, put your heart in it. This is the secret of success." तो इसमें क्या होता है कि एक दिन की बात थी कि द्रोणाचार्य जो थे हमारे, वो सारे जो पाँचों प्रिंसेस थे उनको जंगल की सी एक और जगह ले गए उन्हें आर्चरी का लेसन सिखाने। तो उन्होंने एक क्ले बर्ड यानी कि एक ऐसी नकली पक्षी बना एक पेड़ के ऊपर रखी और उन्हें उनको बोला कि तुम्हें मुझे कि तुम उसकी आँख पे निशाना मारो। अब देखो इस पे आँख पे निशाना मारना कितना टफ होता है। तो इसमें द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो बोलते कि मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे आसमान दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने फिर भीम से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे स्ट्रीम भी दिख रही है। फिर हमारे यंगेस्ट प्रिंस ने क्या बोला ऐसा पूछने पे, तो बोला कि मुझे सन दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहे हैं। फिर वो पूछते हैं अर्जुन से कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वो बोलता है कि आपने बोला है मुझे कि आँख पे निशाना, बर्ड की आँख पे निशाना लगाना है। तो राइट नाउ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट द आई ऑफ द बर्ड, यानी कि बर्ड की आई के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, वो स्माइल करी। उन्होंने अर्जुन को बोला कि दैट तुम एक दिन द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर, यानी कि बेस्टेस्ट आर्चर बनोगे हस्तिनापुर के, बिकॉज तुम अपना जो भी तुम करना चाहते हो उसमें तुम अपना पूरा सोल हार्ट अच्छे तरह से उसे करने की अच्छी तरह से करते हो। द्रोणाचार्य के जो वर्ड्स थे, उन्होंने जो बोला था कि वो ग्रेटेस्ट आर्चर बनेंगे हस्तिनापुर के, और वो सही साबित हुए। जैसे जैसे वो अर्जुन ग्रो अप हुए, बड़े हुए, तब तक कोई उनकी आर्चरी मैच नहीं कर पाया, कि उनसे अच्छा कोई आर्चरी चला ही नहीं पाया। तो मिसेस बोस, अब ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो मिसेस बोस कहते हैं कि इस स्टोरी से जो हमने द्रोणाचार्य जी और गुरुकुल सबकी पढ़ी, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि व्हेनेवर यू डू समथिंग यू पुट योर हार्ट इन इट, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो इसमें एक सक्सेस का सीक्रेट बताया कि आप जो भी करो उस पर अपना पूरे दिल से करो, लगन से करो, और आपको फिर वो अच्छा सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो that was the chapter. I hope you understood this particular chapter and read this chapter, and if you have any doubts then tell me. Okay, thank you.